Hello, everyone. Welcome to the one more episode of Tips, the IPER podcast show. You all are aware IPER means excellent academics, excellent placement opportunities. And I have already told you all that the soul behind this achievement is our faculty team members. Today, I am happy to make you all meet one of our youngest but one of our oldest faculty member of this institution. Welcome, Mr. Rahul Chaube. He is with us since 2012, a person in marketing, communication skills, and the soft skills development for the students. Welcome, Rahul sir, to this podcast. Thank you so And much, sir. I'm happy to have this podcast with you today. Reason being that you are the one of the most sorted out faculty of this institution, because the areas in which you are involved really mean a lot for a particular student who is making his career in management. Your hand holding to the student throughout his journey of learning academics plus soft skills development plus their career development is very important. And we have seen that you have done remarkably well in last 13-14 years for this particular job. So the first question which is always there in my mind, see, in your age when you entered into academics, you were having a lot of opportunities in front of you. I have seen that most of the young generation is not at all interested in teaching, but you joined very early in academics. ऐसा क्या हुआ कि अचानक आप पूरा कॉर्पोरेट छोड़कर और एक ग्लैमरस प्रोफेशन को छोड़कर टीचिंग में आप आ गए? सर, सबसे पहली चीज तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. You said that you are very happy, and I am extremely honored to sit in front of you and to be in the hottest podcast of this particular term. Yes. Sir, it was not a impromptu decision. अब जब सोचता हूँ पहले का, तो फिर बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं कि ये सीड बहुत पहले ही आ गया था. अच्छा. During sir my schooling, I was extremely impressed by my commerce faculty. In my graduation also, again sir my accounts sir, वो आते थे, एक बुक लेके आते थे, तो वो बुक रखते थे वहां पे और वो पूरा सम बोर्ड पे लिखते थे. एंड आई वाज एक्सट्रीमली फैसिनेटेड कि इनको इतने सारे नंबर्स कैसे याद रहे. हाँ, वो उस एज में बड़ा ही मैजिक लगता है कि जो आप सीख रहे हैं वो सामने वाला बिना रुके बिना सोचे करे जा रहा है, तो इट लुक्स एस्टोनिशिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अनरियलिस्टिक लगता था. देन सर माय फाइनल जो शेप आया कि हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं, दैट वाज हियर इन आइपर. सर 2008-10 आई कंप्लीटेड माय एमबीए. उस वक्त आपसे, सोनी सर, शर्मा सर, आई सॉ दैट व्हाट, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे और किस तरीके की टीचिंग हो रही है. सो ये और मन में भी था कि हाँ ठीक है, दिस इज वन थिंग. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट सर, ड्यूरिंग वन ऑफ द इंटरव्यूज जहां पे मेरा प्लेसमेंट भी हुआ, द इंटरव्यू आस्क्ड मी कि व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान. तो मैंने उनको कहा था कि 10-15 years डाउन द लाइन आई विल गो बैक टू एकेडमिक्स. हाँ, मेरा वो 10-15 years थोड़ा सा जल्दी हो गया, बट डेफिनेटली सर. तो मैं ये अगर इसको समराइज करूं तो आप कुछ ऐसा कह रहे हैं कि बिकॉज यू आर इम्प्रेस्ड बाय योर टीचर्स, so you thought to become one of them. That is what your idea. Yes. Okay, then it's a very logical step you have taken. Really, it's very impressive that people make role models, people make their ideals. But when you not only follow your teachers, whenever you don't follow your ideals, you don't only follow your जिसको आप मानते हो कि I should be he or she, वो आप कर जाओ तो बहुत अच्छी बात है. तो आई थिंक द फर्स्ट सक्सेस विच यू गॉट इन योर लाइफ इज दैट यू बिकेम व्हाट यू वांटेड टू बी. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज नहीं तो यंग लोगों में एक ऐसा मैंने राहुल सर सुना है कि अगर कोई टीचिंग में आ रहा है तो वो इंसिडेंट नहीं होता, एक्सीडेंट होता है. पर आपके केस में मुझे क्लियरली ये लग रहा है कि वो इंसिडेंट है, वो एक्सीडेंट नहीं है. Marketing is your area.
आप मुझे कह रहे हैं कि आपको कॉमर्स पसंद था, अकाउंटिंग पसंद था और फिर आप मार्केटिंग में लैंड कर गए। ये मैं थोड़ा सा इसको समझना चाहूंगा, हाउ इट हैपेंड। सर एक्सट्रीमली गॉट फैसिनेटेड बाय ब्रांड्स एंड व्हाट दे आर डूइंग, यस यस। एंड स्पेशली एक एलिमेंट जो है एडवर्टीजमेंट। कहीं ना कहीं वो एडवर्टीजमेंट में स्टोरी टेलिंग और ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। तो वो लगा कि हाँ ठीक है, दिस इज समथिंग वेयर आई कैन वर्क। So you read between the lines also when you Sir, hear an advertisement, when you see an advertisement. I try to do वो that. fascinate करता है आपको। सर एब्सोल्युटली सर। But still, that cannot be the only reason to take up the marketing as your specialization. कुछ और भी होगा जो आप शायद नोटिस करे होंगे या जाने अनजाने आप अभी उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे, या क्या? मुझे लगता है there is something else also. सर there is a lot of scope to do a lot of experiments in that. Yeah. No credits taken from finance, but there are certain guidelines. उनको follow करना ही करना है। HR के भी अपने principles होते हैं, but when it comes to marketing, काफी कुछ आप play कर सकते हैं। Open field मिलता है। Open field है। और क्लीन एक स्लेट मिलती है, you can draw your own imagination into that. और मतलब शायद बचपन से ही सर ये स्टोरी टेलिंग वाली एक रही है। मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे बहुत बचपन से संपादक महोदय बोलता है। उसका रीजन ये है कि आई यूज्ड टू हियर सर्टेन थिंग्स एंड देन मैं उसके बाद में उसको बताता था। Yes. तो ये चीज थी। Okay. That goes with marketing. I think that's very important. तो मार्केटिंग में आप अपना गुरु किसको मानते हैं when you see the corporate world in advertisement and all? सर वन पर्सन दैट कम्स, और जो मेरी हर पहली क्लास के पहले वीडियो में होते हैं, लेट मिस्टर पीयूष पांडे। बिल्कुल, उनके बारे में अगर हम बात ना करें मार्केटिंग के पॉडकास्ट में अगर हम हैं, तो मुझे लगता है कि वो पॉडकास्ट ही अधूरा है। मैं सर अभी भी बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हैं उनके बारे में बात कर। यस यस। जिस तरीके से उन्होंने इंडियन मार्केट को समझा और इंडियन कंज्यूमर्स को जिस तरीके से समझा, और एक छोटा सा एड, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल, इट क्रिएटेड द एक चेंज के डिटर्जेंट मतलब महाबोरिंग, नो, इट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, इट इज एक्सट्रीमली अबाउट फैमिली। एंड देन फेविकॉल एडेसिव, मतलब हम तो दुकान पे जाके हम एडेसिव तो कभी बोलते ही नहीं, Right. हमेशा ही फेविकॉल बोलते रहे। राइट। और हम ये मानते हैं कि अगर फेविकॉल है तो सब कुछ अच्छा है। तो प्रोडक्ट को ही जब जो ब्रांड नेम है वो डिफाइन कर दे, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब वही होगा कि 2 अमूल देना, तो बाय डिफॉल्ट चीज और घी नहीं समझेगा, वो बटर ही समझेगा। एब्सोल्युटली। दैट इज व्हाट, एंड लाइक यू नो, 2 जेरोक्स कर दो। अब फोटोकॉपी और जेरोक्स में बहुत फर्क है, बट पीपल से दिस, सो दैट्स द क्रेडिबिलिटी ही ऑलवेज हैज अचीव्ड, यू नो, इन दिस फील्ड। सो वन इज दिस। और जब आप मार्केटिंग की बुक्स पढ़ते हैं, या मुझे कहना चाहिए मार्केटिंग के तो फिक्शंस भी होते हैं, वो पढ़ते हैं, तो कोई ऑथर जिसको आपको पढ़ के बहुत मजा आता है कि यार ये दिस इज समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू क्लोजली एसोसिएट विद? सो मिस्टर राजन सक्सेना, उनके इंडियन एग्जांपल्स जो उन्होंने अपने टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, वो क्योंकि तो राहुल सर, मैं यहाँ आपको रोक के बताना चाहूँ, व्हेन यू वर नॉट, यू नो, आप शायद स्कूल में रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ 1999-2000 की। Mr. Rajan Saxena visited us in IPER, and we were fortunate to, you know, hear him as a expert and guest faculty. And I must tell my audience कि at that time I was, you know, hosting him. मैं बहुत यंग था, मैंने उसी टाइम ज्वाइन किया था, पर जब मैं उनको होटल से, एयरपोर्ट से लेके आ रहा था और जो उनके साथ मेरे डिस्कशंस हुए थे, आई थिंक यू स्पॉटेड राइट, उनकी राइटिंग में भी और बात में भी ये दिखता था कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज ऑलवेज देयर। उसके बाद मैं उनसे निम्स में भी मिला था बॉम्बे में। तो कहते हैं मार्केटिंग के एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है कि उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। तो लगभग 12-13 साल बाद मैं उनसे मिला था, बट ही, यू नो, सेड कि आई रिमेम्बर आईपर, आई विजिटेड देयर। सो आई थिंक आपने उनकी बुक्स को काफी उसी हिसाब से पढ़ा है। यस सर, एंड ये गजब का कनेक्ट द डॉट्स है सर, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हुआ है, एंड सच अ ग्रेट पर्सन। ओके, राहुल सर, पिछले 4-5 सालों में आपने मार्केटिंग के अलावा भी एक नए एरिया में एंटर किया है इन आवर इंस्टीट्यूशन, and we have a specialized capsule program for the students to groom on their soft skill part, which is very important in management, which is called as PEPS, Placement Eligibility Preparation Sessions. इसको आप डिजाइन करते आए हैं,
तो मार्केटिंग पढ़ाते पढ़ाते ये आपको दिया गया करने के लिए या आपका इसमें इंटरेस्ट इनहेरेंट था जो आप आगे बढ़ाए? सर 100% मेरा इंटरेस्ट था इसमें। उसका रीजन ये है सर कि बैक इन 2008-10 ये हमारे पास हैम सेशंस के नाम से हुआ था, ह्यूमन एसेट मैक्सिमाइजेशन सर। उस वक्त मुझे ड्रास्टिकली मदद की थी उन हैम सेशंस ने व्हेन इट कम्स टू जीडी एंड पीआई। हम सब एज अ स्टूडेंट सर, हम बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से आए, बट एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, और प्लस क्या है कि अपनी बात रखने का तरीका, बात तो बहुत सारे लोग ज्ञान जानते हैं लेकिन बोलने का तरीका आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैसेजिंग कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। सो उस वक्त इसने बेनिफिट बहुत ज्यादा किया। जब मैं यहाँ पे आया कुछ समय के बाद ये एक अपॉर्चुनिटी आई, तो दिस वाज अ गोल्डन मोमेंट फॉर मी। एंड आई हैव सीन सर स्टूडेंट्स, दो द स्टूडेंट्स दैट कम ओवर हियर एक्सट्रीमली नॉलेजेबल, अगर आप उनसे वन ऑन वन डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारी अच्छी बातें वो निकाल के आते हैं, बट द मोमेंट यू पुट देम समटाइम्स इन ग्रुप तो फिर वैसा परफॉर्मेंस नहीं निकल के आता। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो प्रैक्टिस नहीं है और बहुत सारी चीजें। सो देन आई फेल्ट कि नहीं, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, समथिंग डिमांडेड फ्रॉम द कॉर्पोरेट एज वेल, कि भाई सिंस हम आ रहे हैं किसी को परखने के लिए तो हमारे कुछ सेट पैरामीटर्स हैं, उसके थ्रू ही हम निकालेंगे किसी को। सो नाउ टिप्स, आई डेफिनेटली लव दैट, टेकिंग दोज सेशंस। और उसमें सर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। तो नोटेबल एग्जांपल हमारी ऑडियंस इसको सुने, देखे, समझे। दो एग्जांपल्स देता हूँ सर मैं। आई कम फ्रॉम बिहार, मैं झारखंड अब प्रॉपर्ली उस जगह से है। एंड वन ऑफ द स्टूडेंट, शी आई बिलीव 3-4 बैच पहले की है वो, एंड शी केम फ्रॉम बिहार ओनली। इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं है सर वहां की, वहां एक्सेंट की प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। वो बच्ची आई और उसने जेन्युइनली अपनी तरफ से पूरी की पूरी मेहनत की, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ड्यूरिंग इंटर्नशिप एंड पोस्ट इंटर्नशिप। एक्चुअली इंटर्नशिप तक तो थी, और उसके बाद पोस्ट इंटर्नशिप जो यहाँ पे हुई, उसके बाद शी कॉल्ड मी अप सर, जुलाई के मंथ में उसने कॉल किया था, एंड शी वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन इन इंग्लिश विद मी। 1 मिनट के बाद मैंने बोला कि कौन बोल रहा है, सच सच बताओ। फिर जब वो हिंदी में आई ना सर, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ठीक है, क्योंकि फिर उसने वापस एक्सेंट पकड़ लिया। तो in such a short span of time she became so much confident, and it is all because of एक हम चैनल दिखा दें और स्टूडेंट्स उस पर वर्क कर लें, and I have seen amazing results in the current batch itself sir. Since he come from a very humble background, उसको एक्सपोजर नहीं मिला इंग्लिश बात करने का, सो कुछ बातें बता दी उसको कि डेली ये करो। वो रात के 11 बजे, 11:30 बजे ऑडियो नोट भेज रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है। सेमेस्टर 1 स्टार्ट एंड सेमेस्टर 1 एंड सर। उसने प्रेजेंटेशन दिया, मैंने क्लास के सामने पूछा कि मैं यहाँ पे हूँ, इस बात से बायस मत होना, डू यू सी एनी डिफरेंस कि जब ये पहले दिन पे जब प्रेजेंटेशन दिया था अटक के, और आज की डेट में कितनी कॉन्फिडेंटली ये प्रेजेंट कर रहा है। एवरीवन अपलॉडेड हिम, एंड इट्स सच अ बूस्ट फॉर एनी स्टूडेंट। यही चाहिए सर, जो स्टूडेंट यहाँ पे विदाउट एनी एक्सपीरियंस आ रहे हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि उनके कलीग्स उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और स्मॉल जो छोटी छोटी मेहनत वो कर रहे हैं। सो ये peer group appreciation always give a boost to your confidence. Absolutely. That is very important. Yes. So I'll go back to your marketing as a subject, because ultimately that's the specialization you are having. आप जब मार्केटिंग का कोर्स आउटलाइन बनाते हो पढ़ाने के लिए, तो उस कोर्स आउटलाइन में हर बार आपके सामने एक चैलेंज आएगा, बिकॉज मार्केट डायनामिक्स आर वेरी फास्ट चेंजिंग. Other specializations might not be that much dynamic in time frame, but marketing is that more dynamic than the other specializations. उसको हैंडल करने के लिए आप क्या करते हो? How you make every time that course outline in such a way that it directly connects to the present market situation? सर एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है that the group of faculties we sit together every semester. Okay. And then we discuss कि this is the benchmark, this is what there is as the syllabus. अब करंट मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में जरा पता करना शुरू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रीमली लेटेस्ट एग्जाम्पल सर, पॉडकास्ट इज देयर लाइक बजिंग लाइक एनीथिंग. सो दिस पर्टिकुलर टाइम व्हाट वी हैव डन, ऑल द फैकल्टीज वी हैव गॉन थ्रू एक्सटेंसिवली टू वेरियस पॉडकास्ट इन मार्केटिंग. ओके. और उसको समझने के बाद हमने ये समझा कि ठीक है, इसमें से ये अच्छा निकालते हैं, इसमें से ये अच्छा चल रहा है, इसमें से ये अच्छा चल रहा है. Okay. So that archive helps you, no? Yes. उन सब चीजों को फिर हमने इंक्लूड किया. स्टूडेंट
आज की डेट में सर मुझे हमेशा से लगता है स्टोरी टेलिंग से बड़ा अच्छा कोरिलेट करता है। राइट। तो यहां से बहुत सारे एग्जांपल्स मिल गए, हम भी अपग्रेड हो गए, एंड नाउ वी आर वेरी मच एनर्जाइज्ड एंड अफ्रेश जब हम स्टूडेंट के सामने जा रहे हैं वापस से दोबारा इस तो आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो ग्रुप लर्निंग काइंड ऑफ थिंग इज आल्सो देयर अमंग द फैकल्टी मेंबर्स, because we have 10 sections in this group of institutions in MBA, तो 10 सेक्शन में 10 फैकल्टी है उसी सब्जेक्ट को पढ़ाती है, तो आपका कहना ये है कि वो 10 लोगों का ग्रुप भी जो है उसके डायनामिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा सर, एंड वी हैव कंटिन्यूअस मीटिंग्स। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि वो 10 सेक्शन में कोर्स आउटलाइन रिमेन्स द सेम? एब्सोल्युटली सर। ओके, डिलीवरी भी सेम ही है। Yes. Only the person changes while. Person changes and couple of time, one or two examples. Okay. But majorly everything will be there for every student. There is no discrimination at all. That's good. That's good. So इसके अलावा भी आप because you are handling the part of counseling also, because student when they try to get admission in our institution, फर्स्ट फेज पर जिस फैकल्टी से वो बात करता है वो आप हैं। तो जो भी हमारे यहाँ एडमिशन्स होते हैं सभी का तो हो नहीं पाता, बहुत सारे लोग एडमिशन नहीं भी ले पाते हैं बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई गैप ऑफ नंबर ऑफ सीट्स। क्या ऑब्जर्व किया है आपने कि कोई स्टूडेंट अभी जब एमबीए करने का प्लान करता है उनके माइंड में क्या चलता है जब वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आपसे बात करने आता है? One thing is great sir that majority of the students that come over here, उनका हमेशा ये कहना होता है कि सर हमने आईपर के बारे में बहुत सुना हुआ है, बस आपसे बस एक बार समझना चाहते हैं। बट अपने करियर के बारे में वो क्या सोच के आते हैं? सर करियर, बिकॉज ऑब्वियसली सबको आईपर नहीं मिलेगा, तो दे मस्ट हैव thought of their own process of growing and entering into their working life. वो क्या बात करते हैं? मैं समझना चाह रहा हूँ कि what is new generation thinking about management as a profession. Leave apart the institution, but management as a profession क्या देख रहे हैं? सर नए जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में कुछ ब्रांड्स और कुछ टैग्स हैं। टैग्स मतलब मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये उनके पास दिमाग में ये टैग्स। वहां तक पहुंचना चाहते हैं, एक्सट्रीम डेस्पिरेशन है और बहुत अच्छा एस्पिरेशन है, वेरी पॉजिटिव एस्पिरेशन दैट इज। वहां तक का पहुंचने का रास्ता कि हमें करना क्या है, दिस इज समथिंग दैट इज मिसिंग। यहाँ पे आके मेजॉरिटी क्वेश्चंस ये रहते हैं कि सर हमारे एक साल कैसे जाएंगे, व्हाट विल बी देयर अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट्स, व्हाट विल बी देयर। सो अगर मैं रेट आपसे पूछूं कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 रेटिंग करना है आपको, सर स्टूडेंट की सीरियसनेस को आप कितना रेट करोगे? कितना सीरियस है स्टूडेंट? आई वुड रेट, एक होता है ड्रीम, एक होता है मस्ट डू काइंड ऑफ ड्रीम। तो मैं मस्ट डू काइंड ऑफ ड्रीम के स्केल पर पूछ रहा हूं कि वो कितना डिटरमिन्ड है। I would say majority are, sir. Majority are very much determined. Okay. They want to make their name. And they are ready to do all the possible things. आप उनकी हैंड होल्डिंग करें, आप उनको बताएं कि आपको ये करना है, they are smart enough. They will do those things. So majority, yes, they are. Irrespective of their graduation and Yes. school background. Yes, That does not absolutely. matter. That doesn't make any difference. So management career is a choice for them. Yes, yes. So if I poke in more into this, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इज स्टिल हैविंग high notes among the young generation. Very much, sir. Very much. For them, they know that if they want to make something and they want to make their name in corporate, MBA is their passport. It is very clear in their mind. एंड कॉर्पोरेट में जाने की इच्छा को कैसे देखते हो आप? वो बहुत लोगों में है या they are still in doubt? No, sir. Majority. They want to be into corporate. Majority. There are very rare who comes with a thought that we want to enhance something that is already there as a family business. हम उसको बढ़ाना चाहते हैं. But I would say 90. About the economy, are they aware? आपको लगता है अवेयरनेस होती है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो हमारा डेमोग्राफी है, इसके बारे में वो जानते हैं? Few of them, sir. Because as I told you, sir, they are very much fascinated about the brand and that tag. वो वहां तक पहुंचने के लिए बस वो समझ रहे हैं कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो when they enter to our institution, सर, तो जब हम उनको इकोनॉमी के बारे में बताते हैं, जब हम उनको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं, तो शायद उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता होगा कि दे हैव चोजन द राइट करियर। वो एक अवेकनिंग मोमेंट होता है सर उनके लिए। दे रियलाइज अच्छा ठीक है, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सर, वी हैव बजट सेशंस। वो इतने सालों से अखबार में, टीवी में वो एक छोटा सा एक नोट देखते आए जिसको उन्होंने पलट दिया।
हाँ लेकिन आफ्टर हियरिंग दैट सेशन अच्छा ठीक है, इसमें तो ये हमारे काम का है, इसमें ये भी हम देख सकते हैं। एंड हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट देयर करियर, वो भी एक उनके अंदर फीलिंग आ जाती यस है। एब्सोल्युटली। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, सो मैंने आपसे आपके सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली, मैंने आपसे आपके चॉइस ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली, मैंने आपसे जो आपको काम दिया गया है एडिशनल फॉर काउंसलिंग दी स्टूडेंट्स उसके बारे में भी आपसे पूछा, और आपने बहुत अच्छे से मुझे बताया कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, वेयर स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग। बट हाउ यू मैनेज अमंग दीज थ्री फंक्शंस व्हिच यू आर होल्डिंग एट दैट टाइम, ये है बड़े अलग अलग। अगर आप किसी के पर्सनैलिटी को डेवलप करने का काम करते हो, योर माइंडसेट इज ऑलवेज डिफरेंट. When you are teaching a specialization paper, the mindset is already different. And when you are talking to a person, the person who is not clear about his career, तो mindset different होता है। ये आप 3 ब्रैकेट में काम कैसे कर पा रहे हो? बहुत इजी है सर। आपके डिक्शनरी से एक वर्ड है वैल्यू। दिमाग में एक चीज बड़ी क्लियर है, वी आर हियर इन दिस प्रोफेशन टू क्रिएट वैल्यू फॉर आवर स्टूडेंट्स। यस यस। एंड दैट्स, वो सब चीजें करवा देता है। उसमें कहीं कुछ, क्योंकि क्लास में जा रहा हूं तो भी वैल्यू एडिशन करने की कोशिश कर रहा हूं, काउंसलिंग में हूं तो भी वैल्यू एडिशन कर रहा हूं, कुछ और काम है तो उसमें भी कोशिश कर रहा हूं कि कुछ वैल्यू ऐड करूं। हाँ, तो मैं स्टिल अभी थोड़ा और डीप में जाऊंगा। That is your objective. You said that I have to create value in that particular domain in which I am working for the student. पर ये इसमें ना माइंडसेट का चेंज है। मैं जब सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो माइंडसेट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। मैं किसी से उसके करियर की मैं बात कर रहा हूं तो माइंडसेट इज ऑलरेडी ऑल टुगेदर डिफरेंट। व्हेन आई एम टीचिंग सॉफ्ट स्किल्स, माय माइंडसेट इज डिफरेंट। ये कैसे, क्योंकि तीनों बहुत अलग अलग है, कैसे हैंडल करते हो? सब एक कॉमन चीज और उसमें से निकल के आती है, ऑब्जर्वेशन। आई जेन्युइनली फील कि मेरा ऑब्जर्वेशन अच्छा है। तो जैसे वो बोलते हैं ना सर कि प्रभु ने आपको 2 कान और 1 मुंह दिए हैं, उसका उसी अनुपात में इस्तेमाल करें। ज्यादा सुने, कम बोले। तो नहीं, पर 2 कान इसलिए भी देंगे, यहाँ से सुनिए यहाँ से निकालिए। वो भी तो एक माइंडसेट है। नहीं सर, वो टचवर्ड, तो एक कान पे आप हाथ रख के सुनते हो। मेरे टीचर्स बहुत अच्छे रहे सर, वो वाला कभी होने ही नहीं दिया। वो यहां से जाके सीधे सिर्फ यही तक ही रहता है। तो सर ऑब्जर्वेशन रहती है ना सर, तो आई डोंट फील कि बहुत ज्यादा डिफरेंस या मुझे बहुत रोल शिफ्ट करने की कहीं मुझे कोई जरूरत पड़ रही है। व्हाट आई एम, और मैं उन रोल्स को फिर वैसे ही फुलफिल करता हूँ। ऑब्वियसली कभी कभार ये रहता है कि कुछ चीजें शायद ओवरलैप करती हैं, हालांकि इनमें से ऐसा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन अगर कभी कोई चीज ओवरलैप करती है तो फिर प्रायोरिटी सेट हो जाती है। ओके, बड़ी सिंपल। तो राहुल सर, अब मैं उस क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है किसी भी आप जैसे फैकल्टी को जवाब देना, बट स्टिल मैं पूछूंगा आपसे। 2012, 2012 एंड 2026, 14 years in one institution you have given your work life. बहुत लंबा समय होता है, एंड आप यू आर टू यंग, यू आर अराउंड 40। तो ये लास्ट 14 years में ऐसे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते होंगे कि आप गो बैक टू कॉर्पोरेट और विजिट सम अदर बिग इंस्टीट्यूशन हु आर इन द टॉप 20-30 ऑफ द कंट्री। तो वो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती भी होंगी। ऑफ कोर्स मैं उनमें नहीं जाना चाहूंगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज आई थी और आपने क्या छोड़ी, बट छोड़ी ये क्लियर है बिकॉज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो छोड़ते टाइम आपको क्या महसूस हुआ कि आप वो सही कर रहे हैं, या इट वाज एन इमोशनल डिसीजन बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू एन इंस्टीट्यूशन सो यू फेल इन लव विद दैट ऑर्गेनाइजेशन? ऐसा क्या है, किसने रोका? बिकॉज यंग एज में रुकना थोड़ा सा इट्स डिफिकल्ट, टेम्पटेशन होता है। नहीं सर, टेम्पटेशन मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ। हर बार 16 अगस्त और ईयर बदलते हैं और मैं एक पोस्ट करता हूँ, मुझे सिर्फ उसी दिन लगता है कि अच्छा 1 साल और हो गया। अभी पर थॉट तो आता होगा राहुल, व्हेन यू सी लॉट ऑफ ऑफर्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो यंग एज में आता तो है थॉट, मतलब इट्स अ ह्यूमन नेचर। तो उस टाइम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो थॉट को आप मानते क्यों नहीं हो, आप नहीं मानते हो वो मैं समझता हूं। ऐसा क्या आपके मन में आता है कि दैट थॉट गोज अवे? सर पहली चीज तो ये है कि ड्यूरिंग माई MBA मुझे बहुत कुछ मिला, यहाँ से बहुत सारा वैल्यू सिस्टम मिला, एंड देन आई बिलीव इन व्हाट दिस इंस्टीट्यूशन इज डूइंग। जब ज्वाइन किया 2012 में सर, उसके बाद से करता और देखता चला आ रहा हूं मैं।
and I just want to be a part of that amazing सो journey. मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। अभी तक हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने ये नोटिस कर लिया होगा कि आपने कई बार ये बताने की कोशिश की कि आप इसी संस्था के एलुमनाई हैं, पर मैंने उतनी ही बार उस बात को ओवरलुक कर दिया। ना ही मैंने अपने ऑडियंस को ये बताया कि आप इस संस्थान के एलुमनाई हैं। उसके पीछे टू माय लिसनर्स आई लाइक टू टेल यू, मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि आज राहुल सर को मैं किसी भी तरीके से एम्बैरेस नहीं करना चाहता कि मैं अपने स्टूडेंट का पॉडकास्ट ले रहा हूं। दैट इज द रीजन आई हैव अवॉइडेड सेइंग दैट यू आर एन एलुमनाई ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तो आज आप एज अ टीचर मेरे कलीग ही बात कर रहे हैं, तो मैं वो नहीं सुनना चाहूंगा जो आप मुझे एज टीचर बताएंगे। आप एज मेरे कलीग जो बताएंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताइए कि आपको किस चीज ने रोका। सर आई विल अगेन 100% रिपीट दैट। मैं देख रहा हूँ कि ये इंस्टीट्यूट कुछ कर रहा है स्टूडेंट्स के साथ, Yes. एंड आई 100% genuinely believe in that thing. That's the thing which I was looking for, because actually, you know, not only you, not only me, but all of us are bound by one thread, and that thread is that the honest approach of IPER group of institutions. Our management, Chaitanya Shiksha Samiti, has always, you know, guided us. They have given a vision which is clear in our mind. Ultimately, the career of the student is our priority. तो जब इंस्टीट्यूशन के इतने ऑनेस्ट एफर्ट्स हम सब लोग मिलके देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एज अ टीचर हम लोगों के मन में भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आप बताना चाह रहे हैं कि बिकॉज दिस इंस्टीट्यूशन इज डूइंग ग्रेट, इट इज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम पार्ट ऑफ दिस एंड टू सपोर्ट दिस मिशन। Yes. तो आई थिंक द मिशन मोड विच यू आर हैविंग इन योर माइंड दैट ऑलवेज स्टॉप्स यू Always. फॉर, एंड बात सही भी है कि आप किसी भी संस्था में जाके काम करेंगे या किसी भी कंपनी में जाके काम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव तो उस कंपनी के विजन को ही फुलफिलमेंट करना या इंस्टीट्यूशन के विजन को फुलफिलमेंट करना होगा। तो आईपर ही क्यों नहीं? आई थिंक दैट्स द पॉइंट विच यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। तो आज मैंने आपकी हेल्प करी है इस पॉइंट को और क्लियर Always, sir, always. दैट्स ग्रेट। ओके, सो 14 years are gone and another 14 years, क्या प्लान है? मतलब when you will reach 60, 20 years from here, क्या सोचा है लाइफ में, क्या करना चाह रहे हो? 100% सर, 14 years here itself. कुछ प्रोफेशनल अचीवमेंट्स रह गए हैं, उनको फुलफिल करना है, दैट इज वन थिंग। और एक पर्सनल है, वो है आयरन मैन बनना है, वो कभी ना कभी जरूर करूँ। उसमें मैं आऊंगा बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके फाइन। तो एक प्रोफेशनल सर है that doctorate needs to be done. That is my ultimate aim immediately. And now you are fit also to enter into research. इतना एक्सपीरियंस आपको हो गया, तो आई थिंक यू कैन फाइंड आउट सम वैल्यू एडिशन ऑल्सो देयर ऑल्सो, जहां पर आप कॉर्पोरेट को कुछ एक नया विजन दे पाएंगे थ्रू योर रिसर्च। सो आई थिंक दैट्स द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो चूंकि आपने अपने पर्सनल कुछ ऑब्जेक्टिव्स का जिक्र छेड़ ही दिया है, तो ये मैं समझता हूं बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जिनका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो आयरन मैन बनना चाहते हैं। अब आयरन मैन क्या होता है वो हमारी ऑडियंस जानती है, मैं उसमें नहीं जाता। बट हेल्दी रहने के लिए एक हेल्दी माइंडसेट की जरूरत होती है। यू आर यंग एज में आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट, एंड हेल्थ कम्स फ्रॉम हियर, ऑल इज इन द हेड। कैसे आप स्ट्रेस को, इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं व्हेन समथिंग एडवर्स इज हैपनिंग इन योर लाइफ? सर ये ना थोड़ा सा स्प्लिट है, थोड़ा सा फ्लिप है, सॉरी। इफ यू हैव अ हेल्दी बॉडी, मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ सर। एक बहुत अच्छी सेइंग है सर, दैट व्हेन यू हैव अ हेल्दी बॉडी यू कैन बैटल 1000 battles in your life. The moment you feel sick, there is only one problem in your life. So एक हेल्दी बॉडी, और ये बहुत सारी चीजें हैं सर। एक्चुअली टचवुड बहुत पहले से मुझे थोड़ा सा हेल्थ एंड ऑल रिलेटेड चीजों के बारे में इंटरेस्ट था। मेरा बेस्ट फ्रेंड ने बहुत मदद की मेरी उसमें। तो सुबह उठना, जिम जाना, एंड सुबह सर बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सुबह 4:15 बजे हम ही लोग थे जो कि जिम का ताला खोला करते थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे।
तो वहां से जब वो चीज लगी सर, तो एक हेल्दी हैबिट, एक अच्छी हैबिट बाकी सारी हैबिट्स को आपको इनकलकेट कर देता है। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि स्ट्रेस को हैंडल करने का एक बहुत अच्छा तरीका हेल्थ को हैंडल करना है। Absolutely, sir. यू हैंडल योर हेल्थ, Yes. स्ट्रेस विल बी टेकन। Yes, absolutely. दैट्स ग्रेट। एंड आई थिंक यंग जनरेशन को तो ये और भी समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा, बिकॉज बहुत ज्यादा। आज का जो हमारा यूथ है उसकी ईटिंग हैबिट्स देख लीजिए, उसका लाइफस्टाइल देखिए, उसकी स्लीप देख लीजिए, ऑल इज इन ट्रबल। तो आई थिंक इट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, बिकॉज यू आर अमंग द यूथ स्टूडेंट्स। इनको भी आप समझाते ही होंगे कि 100%. किस तरीके से उनको दे हैव टू कैरी देमसेल्व्स। बिल्कुल। एंड इट इज सेड कि इंडिया का यूथ तो फिर भी बाकी दुनिया के यूथ से बहुत हेल्दी है। अगर ये इसको थोड़ा सा और शेप कर लेंगे तो वी विल बिकम दी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट यूथ नेशन ऑफ द नो वर्ल्ड। डाउट इन दैट। ओके, तो व्हाट अबाउट योर, अगर मैं आपसे आपके फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में पूछूं, कौन कौन है, वो क्या करते हैं? मॉम है हाउसवाइफ, डैड अभी फिजिकली हमारे साथ नहीं है, तो उनकी मेमोरीज और उनकी ब्लेसिंग्स है। दे आर ऑलवेज देयर। या 2000 सॉरी, बहुत डांट पड़ेगी अगर मैं अपनी दोनों बहनों का जिक्र नहीं करूंगा तो। दो बड़ी बहनें हैं, बोथ आर हैप्पीली मैरिड, एंड 2014 गॉट मैरिड सर। तो 2014 में माँ पिताजी मिले, और मेरे इन-लॉज, वाइफ है, शी इज वर्किंग, और हम सब के ऊपर राज करने वाली बेटी है। इन विच क्लास शी इज शी स्टडीइंग? सेकंड, इन सेकंड राइट। So family is, in good hands, because you are, there to take care of everyone. And being a good son, being a good father, being a good husband, being a good brother is the ultimate objective of any man. So we all have to do that, and we are hopeful that you will do it gracefully in your life. Thank you. ओके, तो राहुल सर, अभी हम क्या है, पॉडकास्ट के एंड की तरफ जब जाते हैं तो आई एंटर इनटू सम पर्सनल थिंग्स। सर, तो वो जैसे तो लोगों को पता नहीं होता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे तो आपसे इस सवाल कभी कर भी नहीं पाते होंगे, उनके मन में तो होता होगा कि हम उनसे पूछें। सर, तो आपका फेवरेट फूड क्या है सर? क्या पसंद करते हो आप? सर आलू के पराठे और दही। ओके, तो यार नॉर्थ इंडियन तो है नहीं आप, फिर ये आपकी पसंद क्यों है? सर आलू सर, हाँ, मतलब वो तो यूनिवर्सल है। आई कैन सर्वाइव ऑन इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओके, बट आपको उसके लिए थोड़ा कार्डियो ज्यादा करना पड़ता होगा। Yes. That's great. And what's your favorite color? वाइट सर। ओके, तो आपकी, मुझे पता है कि चॉइस तो मोटरसाइकिल में एक रॉयल इनफील्ड तो है ही है। सर। फोर व्हीलर में आपकी क्या चॉइस है? व्हाट इज योर ड्रीम कार की वन डे आई विल ओन दिस? सर इट्स फोर्ड मस्टैंग। क्योंकि हर मैन का ये टॉय होता है, तो हम लोगों के सबके मन में एक छुपी हुई कहीं ना कहीं आस और इच्छा तो होती ही है कि ये हमारे पास होना चाहिए। होगी नहीं होगी, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट मन में रहता है। तो फोर्ड मस्टैंग Ford Mustang is ओके, yes. व्हाट्स इंपॉर्टेंट, what you like in Ford Mustang? The sound, the engine sound, sir. Okay. It's Okay. vintage. It's classic. So 5000 cc 8 cylinder gives you that kind Yes. of, Yes. okay. And what's the second choice? अगर Mustang नहीं मिलती तो? सर मैं एकदम उल्टा जवाब देने वाला हूँ। एक ऐसी कार जो बंद हो गई, बट आई लव दैट, दैट इज टाटा नैनो। नैनो। आई लव तो दैट। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट उठा लिया। अब मुझे वापस से आपकी मार्केटिंग में जाना पड़ेगा। आपका क्या थॉट प्रोसेस है? व्हाई दिस प्रोजेक्ट फेल्ड? अगर हम इसको फेल्ड माने, बिकॉज मैं अभी कहीं कहीं पढ़ता रहता हूँ कि वो रिवाइवल मोड पे कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, बट स्टिल अगर फॉर अ गिवन सेक हम उसको माने कि अभी तो नहीं, तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? सर अनफॉर्चुनेटली अ बिग ब्रांड, दे फेल्ड टू टेल द एग्जैक्ट मैसेज व्हाट दिस इज फॉर। उन्होंने ये तो बता दिया कि ये सस्ती है, लेकिन यहाँ के कस्टमर्स ने एक तो पहली बात उसको वैसे रिसीव नहीं किया। सर आज की डेट में भी भारत में कार इज नॉट समथिंग वेरी ओके, इट इज येट अ लग्जरी। अभी भी जब कार आती है घर में तो हम पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते हैं। नेसेसिटी नहीं है, इट्स स्टिल अ लग्जरी, एंड वी ऑल टेक दैट कार एज अ फैमिली मेंबर। वो ये इमोशन जुड़ता है। वो हमारा बजाज वाला अभी तक कारों पे ये कैरी हो रहा है। तो ये एक मैसेज डिलीवर करना, प्लस कुछ इंसिडेंट्स हो गए बीच में, तो फिर वो न्यूज ऐसी आई कि लोगों ने फिर, आई मीन एनीवन स्पेंडिंग इवन 2 लाख रुपीस इन इंडिया इज वेरी मच, वो रिस्क नहीं ले सकते हो कि वी विल टेक दैट। But perception was the problem. Yes. And they were not able to manage that perception. But अब सर टाटा मोटर्स वापस जिस मोड से रिवाइवल पे आया है, आई एम जस्ट होपिंग एंड आई एम क्रॉसिंग माय फिंगर्स दे ब्रिंग दैट
नहीं राहुल सर, हम इसको यहाँ रोकेंगे, अदरवाइज फिर ना हम मार्केटिंग की तरफ चले जाएंगे और मुझे अभी आपके साथ पर्सनल रहना है। सर आपकी हॉबीज क्या क्या है? साइकिलिंग एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड विद रनिंग सर, लिटिल बिट रनिंग। ओके ओके। एंड ये हॉबी को मैं, चलिए अब थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ क्वेश्चन को, इसी को ही। जब भी आप फ्री होते हैं आप क्या करते हैं? अब मैं हॉबी की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं उसको हॉबी मानूंगा, बिकॉज शायद रनिंग एंड साइकिलिंग माइट बी योर पैशन। हॉबी तो वो चीज हो जाती है मेरे हिसाब से कि जो आप जब भी फ्री समय मिला मैं ये करता हूं। सर इसमें दो चीजें नहीं है सर। आई लव वीडियो एडिटिंग, ओके, तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वो अगेन सर वही तो टेक्नोलॉजी के आसपास हो, वेरी मच, वो कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी, यस, व्हिच इज योर फोर्टे, कि मुझे वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर वो। और फ्री टाइम पे 100% किताब पढ़ना सर, बुक्स पढ़ना। दे आर व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू रीड? a range of books sir. I read mythology, I love it. मैं ऑटोबायोग्राफीज भी पढ़ता हूँ, कुछ करंट अगर आया है तो मैं उसके बारे में भी पढ़ता हूँ। तो ये एक है, एक हैबिट मैंने बना रखी है कि एक हिंदी किताब पढ़ूंगा फिर उसका एक इंग्लिश पढ़ूंगा। दिस इज व्हाट आई डू। वो बहुत मतलब सर, बुक रीडिंग इज समथिंग जो कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि यू कैन हैव 365 फ्रेंड्स इन योर रूम, आपके पास एक किताब चाहिए आपको, अमेजिंग स्टोरीज, अमेजिंग एग्जाम्पल्स, और फिर वो लाइफ में आप उसको यूज भी कर सकते हो आप फिर। Oh, that's great. So, when you look back to your life now, 21 years of age you graduated, and now you are 40. 19 years में अपनी लाइफ को कितने मार्क्स दोगे as far as your plan was concerned, कि मैं लाइफ में जो करना चाहता हूँ, 10 में से क्या रेटिंग देंगे आप? 9 sir. That's great. So you see that it's fulfilling. Yes. And I think this satisfaction percolates, and this passes over to the students. That's the strength of our faculty members. जब तक वो फील नहीं करेंगे तब तक वो किसी को फुलफिल करा भी नहीं सकते। I think with this strong note, आप समझ ही गए होंगे कि what is the USP of this institution. People like Mr. Rahul Chaube sir and other faculty members you have already met till now. Thank you, Rahul. It was pleasure talking to you, because we talked with you on various other issues also on day-to-day basis. But having insights from you about this institution, about your life, it was a pleasure talking to you. Absolutely honor of mine. Thank you. Thank you.